Hello students, today we will continue what we have left in the last class, and last class we have studied atomic physics, and also we have completed Thomson's model and Rutherford's atomic model and its limitation, and then after we completed the Bohr's atomic model and its postulations, and after that we have also derived some relations for orbital velocity of an electrons when it is moving in a fixed orbit, and the distance of that stationary orbit from the nucleus. We have also derived that radius of the stationary orbit from the nucleus, and after that we have derived the kinetic energy of an electron and also potential energy. Then after adding that, we have observed the total energy contained by an electrons. Okay, so we'll just resume from that where you are left. The first one is the formula. I am writing the formula what we have derived in the last class. That is, first one is velocity, Vn, velocity. N means nth orbit velocity. N is equal to 1, 2. N1 means that is k cell nearest to the nucleus. N is equal to 2 means that is L cell, then M cell, N cell, etc. So Vn, the orbital velocity of nth orbit, that Vn, the formula for the Vn was what I remember, that was Z square divided by 2 epsilon naught NH. This was derived, and this was the formula for nth orbit. N is equal to 1, 2, 3, etc. And we know that hydrogen or hydrogen-like atom, Z must be 1, that is 1 electrons. Hydrogen means that is hydrogen-like atom means that is helium plus, lithium 2 plus. They have hydrogen-like atom, that means electrons, they have 1 electrons. So it is velocity we have derived last class. Then we have derived radius of an orbit from the nucleus. That was the formula was epsilon naught n square h square divided by pi m z square. This was derived also. nth orbit radius nucleus ru kete seita ame bi derive करथिले ए formula थिला. Then आमे kinetic energy भी derive करथिले, potential energy भी derive करथिले. Suppose kinetic energy formula या थिला, kinetic energy is equal to थिला z square divided by 8 pi epsilon naught into r. ये थिला kinetic energy formula. सेंद potential energy formula थिला minus z square 4 pi epsilon naught r. ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में डिराइव करते कोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो पोटेंशियल डेरिवेशन थिला f डॉट dr रे इंटीग्रेशन करके हम पाइथिले सेठी फॉर्मूला थिला जे k q1 q2 by r माने पड़छि k q1 q2 by r. q1 इज न्यूक्लियस चार्ज Ze and q2 इज इलेक्ट्रॉन चार्ज दैट इज नेगेटिव माइनस e, तो माइनस z स्क्वायर. तो k र वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught into r. That is a simple formula, potential energy formula of an electrons when moving in the around the nucleus. So ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हो. देन ये वाला काइनेटिक एनर्जी लो. टोटल एनर्जी जो कैलकुलेट करते ले, टोटल एनर्जी En सपोज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये हम डिराइव करते आपको जब हम सम कर देवा देन आम ये समेसन आम पाइबा माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये हूँ ये न फॉर्मूला ऐड करो तापर देख. देन देखो ये देख काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी भीतर डिफरेंस हो -1 इंटू -1. दैट मीन्स मुझे लिखिपारि En इज इक्वल टू माइनस इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी. ये रिलेशनटा सब मन रख, ये रिलेशन सब मन रख. टोटल एनर्जी फॉर्मूला हूँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. देख इट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला. ये सब आम लास्ट क्लास डिराइव कर देते बस एतिक. देन आज आम नेक्स्ट आड़ को जीवा. टुडे विल डिस्कस फर्स्ट बोर्स पोस्टुलेट्स भितर किसी जिन रही जाइए आस से डिस्कसन करिया. ये जो फॉर्मूला गुड़ाक Vn Rn ये फॉर्मूला में आनी कौटू फास्ट 3टा इक्वेशन थिला. फर्स्ट इक्वेशन वाज mb स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू लास्ट क्लास कहते mb स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू z स्क्वायर बाय 4 पाई epsilon naught into r स्क्वायर. that is force, electrostatic force between the nucleus and the electrons.
तो ये फोर्स भी आम करते तो एम बी स्क्वायर बाय आर हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स पिला ये मुझे नेगेटिव साइन कहीं देनी कहीं न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर तो अट्राक्टिव फोर्स नेगेटिव मुझे कहीं देनी जेड टोटल न्यूक्लियस चार्ज जेड हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ई हूँ चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हूँ नेगेटिव बट सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑल्सो अट्राक्टिव फोर्स तेणु ये भी से अट्राक्टिव फोर्स आम नेगेटिव साइंस ओनली फॉर अट्रैक्शन दैट इज व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्टेड टू इच अदर दैट इज ए नेगेटिव साइज Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव जब दुईटा नेगेटिव हम आंसर विल बी पॉजिटिव Q1 into Q2 जब दुईटा पॉजिटिव आंसर इज पॉजिटिव दैट इज रिपल्सिव फोर्स माने पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स माने नेगेटिव एटी ये जो एम बी स्क्वायर बाय आर इज सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ फिजिक्स सो ये गोटे इक्वेशन थिला जोटी आर आ गोटे आर कटि जाउतला एम बी स्क्वायर इज इक्वल एतिकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर को हम फॉर्मूला डिराइव कर देते देन आ गोटे थिला हमर फॉर्मूला एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एंगुलर मूवमेंट ऑफ रिलेशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई एच हूँ प्लांक्स कांस्टेंट पिला एच वैल्यू सब मन रखते 6.67 इंटू 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड मुझे जूल कन्वर्ट कर तुम इलेक्ट्रो वोल्ट भी कन्वर्ट कर अच्छा ये है तो सिंपल पायर वैल्यू 22 with 22 डिवाइड बाय 7 वी नो दैट सो ये दुईटा इक्वेशन वी डिराइव्ड दिस टू इक्वेशन देन वी डिराइव्ड दिस देन ये जो एनर्जी हम डिराइव कर एनर्जी रेडियस अच्छी सपोज nth ऑर्बिट रेडियस rn ये जो nth रेडियस ये जो ये r वैल्यू जब हम पुट कर दबा देन विल गेट द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो आस पुट करवा ये पुट करें EN तो ये जगह मुझे EN जगह पुट करी लास्ट क्लास ये कंप्लीट करते एवं मुझे स्टार्ट कर EN माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय पुट कर 8 पाई SL नॉट RN पुट कर RN हूँ SL नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m जेड स्क्वायर पिला को पुट करके आणवारी ऊपर को देखिए ये -m e टू द पावर 4 पिला ये हूँ ना नहीं देख डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर एति हूँ ना नहीं मोर तुम मैंने रही पढ़ी पढ़ी तुम मैंने देख तक अच्छा ये एम हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स कथा ये होचे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी आम इलेक्ट्रॉन्स कथा होचे तो ये हूँ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जेड हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आम जाने जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड सो दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज दैट्स व्हाई द एटम इज न्यूट्रल ये तो आम फर्स्ट क्लास पढ़ी अच्छा ये है जदि आपको -m e टू द 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर ये फॉर्मूला देख ये जगह गोटे लक्ष्य कर गोटे कथा ये फॉर्मूला ये तो सब कांस्टेंट अच्छी एम हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आम जाने मुझे लिखिदे पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg मुझे लिखिदे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम हाँ कि ना तापर मुझे लिखिदे एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड पर मीटर सब ऐसा नोट लिखुची देन एच वैल्यू तो मुझे लिखिदे तेणु आपको सब पुट कर ये पुट कले एच जूल अच्छी ताकू इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट कर वी नो दैट देन वी विल गेट -13.6 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर ये हूँ एक्चुअली पिला ये सब एप्लिकेबल हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन लाइक एटम मैं कही बोर्स मॉडल ये बोर्स मॉडल रू फॉर्मूला आसी तो ये हूँ EN रो फॉर्मूला यही जा बोधे आम डिस्कसन करते लास्ट क्लास जहाँ मन पड़ी देन आम आप गोटे डिस्कसन करते आ गोटे बोर्स का पोस्टुलेट को जीवा जिते बड़े इलेक्ट्रॉन्स मु गोटे चित्र करदे देख यू विल बेटर अंडरस्टैंड ये हूँ जेडी प्लस धर न्यूक्लियस अच्छी ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छा मूव कर इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट बा सर्कुलर फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट रे मूव कर इलेक्ट्रॉन्स से आम जाने ये गोटे इलेक्ट्रॉन से गोटे के सेल ये एल सेल एम सेल n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 एमती डॉट 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 अच्छा ये गोटे देख न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस अच्छी ये पॉजिटिवली चार्ज आम न्यूक्लियस फर्दर चैप्टर प्योरली न्यूक्लियस विषय पढ़ा आज ही पढ़ा तो ये देख जदि गोटे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट सपोज हायर ऑर्बिट रू लोअर ऑर्बिट को मूव कर ये कौन कर
जदि इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट मूव कर ये एनर्जी रेडिएट करिवो एनर्जी लूज करिवो ता माने एनर्जी रेडिएटेड जदि जने लोअर ऑर्बिट रु हायर ऑर्बिट मूव करछि तले एनर्जी गेन करिवो तो लोअर ऑर्बिट रु हायर ऑर्बिट सपोज हाई लोअर ऑर्बिट एनर्जी गेन ये हूँ एनर्जी लूज बाय एनर्जी एमिटेड एनर्जी एमिट करिवो देखिए कौ फॉर्म रे एमिट करछि कौ सेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पड़िबा अल्ट्रावायोलेट रीजन विजिबल रीजन इंफ्रारेड रीजन बहुत बार रीजन अच्छे जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होछि दैट इज वेवलेंथ पर डिपेंड होछि तो देखिबा ताकू अच्छा एनर्जी एमिट करछि हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट की लोअर हायर ऑर्बिट एनर्जी गेन करछि इलेक्ट्रॉन्स जदि गोटे इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट नबार अछि तो हमको एक्सटर्नल एनर्जी दबा पड़िबो जदि हायर ऑर्बिट लोअर एनर्जी आउछि तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को करिया पड़िबो एनर्जी को एमिट करिया पड़िबो कहीं सिंपल एनर्जी आम जानिले एनर्जी होची नेगेटिव टोटल इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी होची नेगेटिव किंतु एठी गोटा कथा लक्ष्य करबा जदि इन्फिनिटी डिस्टेंस में नहीं जीवी सपोज ये डॉट इन्फिनिटी डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं बट इन्फिनिट माने इन्फिनिट इन द सेंस दैट एठी जो न्यूक्लियस अच्छी और एठी जो इलेक्ट्रॉन्स अच्छी आंका भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियर इक्वल टू जीरो माने धरी नियर जीरो जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो तो फोर्स जीरो माने वर्क डन माने एनर्जी जीरो ताने इन्फिनिटी इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो तार इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनिटी रे जीरो रोची तो इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनिटी ना इलेक्ट्रॉन्स आटम भीतर अच्छा ताने इलेक्ट्रॉन्स जितेबाला लोअर ऑर्बिट आउची नेगेटिव हो जाउची ताने ऑब्वियसली जीरो रु नेगेटिव मानस एनर्जी लूज करिवा एनर्जी एमिट करिया दैट मीन्स एटी कंफर्म जे इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कम्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी एमिटेड सिमिलर अपोजिट लोअर टू हायर एनर्जी इट इज गेन्ड एनर्जी सो एति होची थिला तो केते एनर्जी गेन करिवो केते एनर्जी लूज करिवो ताप भी अच्छी फॉर्मूला जोटा कि हमर बोर्स पोस्टुलेट अच्छी द एनर्जी रेडिएटेड मुझे लिखि दउची एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड एनर्जी एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स comes from higher orbit to lower orbit energy emitted is equal to E is equal to h nu energy emitted E is equal to h nu is equal to E2 minus E1 E2 minus E1 E2 minus E1 प्ला E2 कौन प्ला एटी दादा एनर्जी होची E2 एटी एनर्जी होची मन कर E1 मु लेट कहूची तामाने ये तो थर्ड ऑर्बिट हेगला E3 नहीं सेन E2 टू E1 सपोर्ट हायर ऑर्बिट एटा को नेबा हायर ऑर्बिट एटा लिखि दो लोअर ऑर्बिट एटा लिखि दो E2 होची हायर ऑर्बिट एनर्जी E1 होची लोअर ऑर्बिटल एनर्जी तो ये E2 आउ E1 देखो ये कौन है ये जी एनर्जी थिला जो ये पहुँची जी एनर्जी तो अच्छी ताने आगे डिफरेंस कौन से एनर्जी रेडिएट कर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट जहाँ भी हो को फॉर्म में रेडिएट कर ये तार इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी तो एनर्जी रेडिएट कर तो से मुझे कौन कली तो एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस द एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट सेमती जदि लोअर ऑर्बिट को हायर ऑर्बिट जाउची इलेक्ट्रॉन्स ताने एटी एनर्जी गेन करची सेम जदि U1 U2 जाउची सेम एनर्जी गेन करिवो जति एनर्जी लूज करची ये सेति एनर्जी गेन करिवो अच्छा बस एति होची कथा सो एटी नेक्स्ट हम गोटे माको इरेज कर दोची जा लिखिया तो लिखि दबो इरेज कर देली ओके सो फार्मूला दरकार अछि कि एनर्जी फार्मूला रखि दबा आको सब डिलीट कर दबा एनर्जी फार्मूला वी हैव कैलकुलेट दिस मच देन वी विल डिलीट ओके तो आपको गोटे देदेबा इक्वेशन 1 धर आज टुडेज लेक्चर में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देदेबा आज लेक्चर भी अच्छा एबे देख मत एनर्जी En एति सेति En माइनस 13.6 z स्क्वायर एन स्क्वायर मो हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन लाइक एटम मु लाइक एटम मैंने कही गोटे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन लाइक एटम लिखि दो जटी हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस एमती हाइड्रोजन माने H ओनली ये हाइड्रोजन लाइक एटम पे Z इज इक्वल टू ऑलवेज 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 तमाने En इज इक्वल टू
En is equal to minus 13.6 by n square from equation 1 from equation 1 अच्छा ये तो एति हला ताने मु कभी E1 केते एनर्जी ऑफ E1 फास्ट ऑर्बिट एठी एनर्जी तर केते n is equal to 1 minus 13.6 n is equal to 1 k cell धर k cell अच्छा सेम दी मु जदी कहबी E2 केते दैट इज n is equal to 2 रे आसबा minus 13.6 जदी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल अछि माने एक्साइटेड हे जाई छी तो ये n is equal to 2 नेले माइनस 13 पॉइंट एटी 1 स्क्वायर लिख दियो माइनस 13.6 2 स्क्वायर फिर आगे कैलकुलेट कर दियो माइनस 3.4 आसीबो इलेक्ट्रॉन फिर ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मु लिखिन कि एटी इलेक्ट्रॉन माइनस 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे अछि ये होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्ले यूनिट सब मोस्ट इंपोर्टेंट माइनस 3.4 E3 सेमती माइनस 13.6 बाय 3 स्क्वायर बेला देखि दियो माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपास आसीबो E4 सेमती माइनस 13.6 बाय 4 स्क्वायर फिर ये आसीबो माइनस 0.85 आसपास आसीबो सेमती E5 माइनस 13.6 बाय 5 स्क्वायर फिर ये माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपास आसीबो फिर सेमती E इनफिनिट केते जो माइनस 13.6 बाय इनफिनिट स्क्वायर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मु कहितल ना E इनफिनिट रे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी 0 देख प्रूफ है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी 0 E इनफिनिट मु जेतेबेले कहबी E इनफिनिट रे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी केते दैट इज 0 एति कथा मन रखे अछि 0 अच्छा बस एति सला आको मु बदे ताको ग्राफिकल कहितली माने गोटा ये रे एटा होची E1 तो टिके बढ़े दबा E2 E3 E4 E5 एमती चलची येठी होची E1 रे एनर्जी केते अछि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर केते अछि E2 रे माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर केते अछि माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट चलियो पिला बे देखो मु जो कहली जो फार्मूला E2 माइनस E1 जेतले एनर्जी गोटा n1 रु n2 को जीवो ताले एटी के जीवो तो केते एनर्जी से हायर को गले लूज करिवो हायर रु लोअर को आसले गेन करिवो सॉरी जब हायर को लोअर आसब एनर्जी लूज कर लोअर हायर गले एनर्जी गेन कर से गेन करू कि लूज करू जहाँ भी करू केते एनर्जी गेन कर केते एनर्जी लूज कर आर डिफरेंस देखिए हायर माइनस लोअर जब मुझे करी माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6 मत ये अप्रोक्सीमेटली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाखापाखि पलि आसो ताने के सेल एल सेल को जीवाई गोटे इलेक्ट्रॉन्स को के सेल एल सेल को जीवाई गोटे इलेक्ट्रॉन्स को केते एनर्जी गेन करिया पड़िबो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तान सिंपल एल सेल के सेल को जीवाई माने आसीबा पई लोअर सेल को गोटे इलेक्ट्रॉन्स को केते एनर्जी एमिट करिया पड़िबो दैट्स आल्सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमती आर डिफरेंस देखि दबो इट इज कॉल्ड डेली याको भी डेली भी कह जाए एनर्जी रेडिएटेड इज एनर्जी डेली एनर्जी गैप नॉट एनर्जी गैप दैट इज अनदर कांसेप्ट इज दैट बट दैट इज एनर्जी लूज एनर्जी रेडिएटेड और एनर्जी गेन 10.2 ये देख ये सेम आसो जा माइनस 1.5 प्लस 3.4 तो यर so we can get this energy gap. So today we have completed this one. I think then we will go for the spectrum, hydrogen spectrum. Very interesting. अच्छा लिभेवा कौनटा तो दरकार अच्छे देखा पे मुझे यहाँ लिभे दूसरी किसी दरकार नहीं ये मन रख फर्मूलाटा ये फर्मूला एंड दिस फर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट देन नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ता पूर्व मुझे गोटे कनसेप्ट मुझे कहूँ लिभे दूसरी किसी असुविधा ना लिखिदेल तो मुझे लिभे दूसरी दरकार नहीं देख तापर देख देख मुझे कहबी पे गोटे कनसेप्ट अच्छी वेव पार्टिकल डुआलिटी पे ये कनसेप्ट तुम आगु पढ़ी डुआल नेचर ऑफ एटम पढ़ीथव बट मुझे टिके रिवाइज कर दूसरी पे ये दुईटा साइंटिस्ट कथा कहते गोटा हूँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ गोटे डी ब्रगली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते कौन ना एवरी वेव हैज पार्टिकल्स सब वेव को आम वेव पार्टिकल अच्छी दैट मीन्स इट हैज ऑल्सो मास सी कहते द लाइट जो लाइट अच्छी लाइट कनसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटन से कल जो लाइट गुड़ा छोट छोट पार्टिकल नहीं गई फोटन कहती आज से फोटन एनर्जी से फोटन एनर्जी इज फर्मूला देते इज इक्वल एच न्यू
सी कहते जे सब वेव दैट मीन लाइट मूव्स इन वेव मैनर सब वेव गोटे पार्टिकल वेव हाज ए पार्टिकल नेचर किए कहते प्लांक्स क्वांटम थ्योरी सेमती डीप रगली कहले जे द मूविंग पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल बा लाइट बा फोटन जो मूव कर मूविंग पार्टिकल कैन बी कंसीडर्ड एज वेव प्रति मूविंग पार्टिकल वेव भाव कंसीडर कहीं एत स्मॉल जे से जो मूव करती से एज ए वेव नेचर भाव मूव करती जदि वेव पार्टिकल आम वेव गोटे पार्टिकल जब वेव भाव आम कंसीडर करिया दैट इज कॉल्ड मैटर वेव आम जब कंसीडर करिया तो वेवलेंथ थी तो सी भी वेवलेंथ फॉर्मूला देते लैम्डा इज इक्वल h by p देख मुझे खाली सर्ट लिखी दूसरी according to Planck's quantum theory every metals quantum theory every particle no light धर दियो light very easy light consists of teeny small particles called photon and that photon has energy E is equal to h nu plus h होची Planck's constant nu होची frequency of that particle nu टर्म लिखि दोची खाली frequency of the particle आम जाने न्यू इजिकल टू सी इजिकल टू एफ लैम्डा जाने भाई एफ हूँ म्यू फ्रिक्वेंसी म्यू लैम्डा तो आम जाने तो म्यू इजिकल टू तो सी बाय लैम्डा कर जहाँ भी हो तो ये कहते प्लांक्स कहते एवरी वेव हैज पार्टिकल से सिंपल कहले एवरी वेव हैज पार्टिकल नेचर ये किए कहले आपको कहते किए प्लांक्स कहते अच्छा तापर जानती according to deep Broglie the moving particle can be considered as a wave moving particle can be considered as a wave called matter wave से कहते ना गोटे मैटर वेव कॉल मैटर वेव जब वेव कंसीडर कर वेव माने वेवलेंथ अच्छी एंड द वेवलेंथ इज एंड द वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल इज लैम्डा इज इक्वल टू h by p ये देते तो h प्लस कांस्टेंट p हूँ मोमेंटम ये मुझे p लिख दूँ p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल पहला ये तो गला सिंपल फॉर्मूला सिंपल थ्योरी तमें ये आम वेव पार्टिकल डुआलिटी तान वेव आज पार्टिकल नेचर एंड ये प्रूफ ये कौन कले एवरी पार्टिकल हैज वेव नेचर तो एवरी वेव आज पार्टिकल नेचर एवरी पार्टिकल आज वेव नेचर सेम जिनस तो वेव पार्टिकल डुआलिटी को कहुए तो बस आप आम जा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी वेरी इंपोर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छा मुझे आपको पिला इरेज कर दूँ जो लिखा तो लिखि दियो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मु कहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक एटम स्पेक्ट्रम भी सेम स्पेक्ट्रम अच्छा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन पिला गोटे कह ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हूँ आ पूर्व आम गोटे वेव नंबर डिस्कसन करने वेव नंबरटा रही है बोधे अच्छा एनर्जी डिस्कसन कर EN इजिकल एति देन अच्छा देन नेक्स्ट E इजिकल टू केते E इजिकल टू h न्यू इजिकल टू U2 माइनस E1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लास्ट क्लास बोधे लास्ट क्लास U2 माइनस E1 तो U2 आमर केते U2 हूँ -13.6 डायरेक्ट लिख दूँ -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस एटी -13.6 जेड स्क्वायर बाय